Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, fine. Today we are going to learn the poem I am Lucky from class 2nd English. इस पोएम में पोएट अपने आप को इमेजिन करता है और उसके बाद उसने ये पोएम लिखी है. Now let us recite the poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं अपने सुंदर पंख के लिए, विंग्स के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होता, थैंकफुल होता. इफ आई वर मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. अगर मैं मैना होता तो मैं अपनी सिंगिंग के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलता. इफ आई वर अ फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. अगर मैं फिश होता तो मैं समुद्र में इधर उधर घूमता रहता और उसके लिए भी मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. तो मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसा मैं हूँ इस तरह से मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, आपकी तरह नहीं. मैं जैसा खुद हूँ ऐसा ही मुझे, उसके लिए भी मैं खुद को लकी मानता हूँ. इफ आई वर एन एलिफेंट, I would be thankful that I can raise my trunk. अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं अपने ट्रंक को उठा के मैं पानी में मस्ती कर सकता था, नहा रहा होता तो उसके लिए भी मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता. इफ आई वर अ कैंगरू, आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. अगर मैं कैंगरू होता तो मैं इतनी लंबी छलांग लगाता जो छलांग मून तक, मतलब चांद तक पहुंच जाती. इफ आई वर एन ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स. अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मेरे 8 आर्म्स होते और उसके लिए भी मैं थैंकफुल होता. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. तो मैं सोचता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा भी अपने आप को खुद बहुत लकी मानता हूँ. आपके जैसा नहीं, मैं खुद के जैसा हूँ. मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ. व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? आप लोग क्या सोचते हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, आप किसके जैसे बनना चाह रहे हो? डू यू वांट टू बी लाइक मी? क्या आप मेरे जैसा बनना चाह रहे हो? और जस्ट यू, या फिर आप अपने खुद के जैसे ही रहना चाह रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. नाउ न्यू वर्ड्स. बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस. ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में 2 टाइम्स लिखने हैं. नाउ वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज बटरफ्लाई, एन इंसेक्ट विद ब्राइट कलर्ड विंग्स. मैना, an Asian bird with a loud voice. Fish, an aquatic animal with gills and fins. Kangaroo, a herbivorous animal with a thick tail and hind legs. Octopus, an aquatic animal with a soft oval body with long 8 thumbs. You have to write in your copy. Now, some words and example sentences. First word is butterfly. Example is, I saw a red butterfly on my way to school. Second example, the butterfly sat on the nose of my dog. Maina. Sentence is, the Maina was sitting on a banyan tree. Maina was perching on the top of our building. Third one is fish. This lake does not have any fish in it. A fish can give millions of eggs at a time. Kangaroo. Kangaroos carry their babies in their pouch. Kangaroos are very friendly. Octopus. We have fresh grilled octopus in our menu. Octopus can do their work very quickly. Read these lines and give the answer. Complete these sentences. Here are 2 columns. In one column the heading is animals and in other column the heading is actions. आपको इन एनिमल्स के एक्शंस लिखने हैं. एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई. सो वी कैन राइट ऑल ऑफ देम. Here are the answers.
A butterfly can fly, a myna can sing, a fish can wriggle, an elephant can raise its trunk, a kangaroo can hop, and you can think. You have to note down in your copy. Now the question answer. Why do you think the butterfly likes its wings? Answer is the butterfly likes its wings because they are very colorful. What can the myna do? The myna can sing and fly high in the sky. What can you do? Sing or paint or write? Answer is I can sing, paint and dance. Do you think the fish was really happy to be in water? Yes, the fish was really happy to be in water as she can swim in it with its fins. Next question is, what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. Answer is, a number of lucky things have happened to me. I won a first prize in painting competition held in my school. I also was awarded with a medal. In sports, I was chosen as a monitor of my class. यहाँ जो आंसर दिए गए हैं वो सैम्पल आंसर्स हैं. आप अपने मन से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हैं. Here is a small poem. Kong has a dream. Kang flew into the sky. He flew to the moon. He flew through a cloud. He slipped down a tree. Kong woke up with a bang. जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं या बहुत सारी बातें चलती हैं. इसी तरह से कैंग को भी एक ड्रीम आया जिसमें वो ऊपर से स्काई में से नीचे गिर गया. फिर उसके बाद वो मून तक उड़ गया. फिर उसके बाद वो क्लाउड पे बैठ के उड़ने लग गया. उसके बाद वो ट्री पे स्लिप होके गिर गया. और इस तरह से कैंग जो है एकदम से शॉक होके उड़ गया. ऐसा ड्रीम आप लोगों को भी आता होगा. नाउ हियर इज द एक्टिविटी साइलेंस गेम. क्लोज योर आईज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे पेरेंट्स को क्लास टीचर का रोल प्ले करना है. बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू, ये वर्ड्स पेरेंट्स को बोलने हैं. With your eyes still shut, imagine that you are seeing these creatures. और आप बच्चों को अपने आईज बंद करके इमेजिन करना है जो जो वर्ड बोले गए हैं उनके बारे में सोचना है. Open your eyes and move like they do. और फिर जैसे बटरफ्लाई वर्ड बोला जाएगा तब आपको इमेजिन करना है कि हम बटरफ्लाई हैं और बटरफ्लाई की तरह आपको मूव करना है. उस टाइम आपके आईज ओपन रहेंगे, पर जब आप इमेजिन करोगे तब आपके आईज बंद रहेंगे, मतलब शट रहेंगे. दिस इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी मीन टू बी डन विथ योर क्लास टीचर. यहाँ पे द रोल ऑफ द क्लास टीचर विल प्ले पेरेंट. दिस विल हेल्प यू डेवलप योर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स, जिससे बच्चों की इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिवनेस बढ़ेगी. कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम. आपको यहाँ पे पिक्चर्स को कंप्लीट करना है और उनके नाम लिखने हैं. जैसे आपको दिखाई देगा फर्स्ट पिक्चर जो है वो है ईयर्स. तो आपको एलिफेंट का ईयर ड्रॉ करना है और वहाँ पे आंसर लिखना है ईयर्स. सेकेंड पिक्चर है ट्रंक. वो आपको एलिफेंट की ट्रंक ड्रॉ करनी है और वहाँ पे आंसर लिखना है ट्रंक. उसके बाद है थर्ड वन इज टेल. टेल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपको आंसर लिखना है TAIL टेल. उसके बाद अगेन कैंगरू के टेल ईयर्स है, वो भी आपको ड्रॉ करने हैं और आंसर लिखना है ईयर्स. फिर लेग्स आपको कैंगरू के ड्रॉ करने हैं और आंसर लिखना है लेग्स. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हुए हैं उनको यूज करके आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. इफ आई वर अ कंगारू आई वुड. अगर आप कंगारू होते तो क्या करते? कंगारू मोस्टली हॉपिंग करता है तो हम वहाँ लिखेंगे इफ आई वर अ कंगारू आई वुड हॉप. इफ आई वर अ टाइगर आई वुड रोअर.
If I were a fish, I would swim. If I were a bird, I would fly. Add full to the words given in brackets and complete the sentences. यहाँ पे आपको FUL ये वाला वर्ड यूज करके आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है, उसमें आपको FUL ऐड करके आंसर लिखना है. यू मस्ट बी डैश टू योर फ्रेंड्स. वर्ड है हेल्प, तो हेल्प प्लस फुल मिला के बनेगा हेल्पफुल. तो आंसर होगा यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. सेकेंड है मेक अ डैश ड्राइंग. इन ब्रैकेट वर्ड है कलर. कलर प्लस फुल मिला के कलरफुल बनेगा और आंसर विल बी मेक अ कलरफुल ड्राइंग. द पपी इज सो डैश. इन ब्रैकेट प्ले. प्ले प्लस फुल मिला के बनेगा प्लेफुल एंड आंसर इज द पपी इज सो प्लेफुल. बी डैश व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. इन ब्रैकेट वर्ड है केयर. केयर प्लस फुल मिला के बनेगा केयरफुल. बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. Here are some examples. Help plus full equal to helpful. Color plus full colorful. Play plus full playful. Thank plus full thankful. Care plus full careful. Join the two words to make one word. Look at the example. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बाकी के करने हैं. पीस प्लस फुल पीसफुल. अब जो रिमेनिंग है वो आप कंप्लीट करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे. राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन. यहाँ पे आपको 5 चीज़ें ऐसे लिखनी है जो आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हुए हैं. आई कैन ईट फूड, आई कैन प्ले विथ माई फ्रेंड्स, आई कैन स्टडी बुक्स, आई कैन राइट, आई कैन मेक ड्राइंग्स. अब यहाँ पे 6, 7, 8 में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप नहीं कर सकते पर, और जो बाकी की चीज़ें वो लिखने जो आप कर सकते हैं. तो 6 में आंसर आएगा आई कैन नॉट फ्लाई. हम उड़ नहीं सकते बट आई कैन वॉक, पर हम चल सकते हैं. आई कैन नॉट क्रॉल. मैं स्नेक की तरह क्रॉल नहीं कर सकता बट आई कैन रन, पर मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग. मुझे डांस नहीं आता पर मैं सिंगिंग कर सकता हूँ. ये वाला आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. Give yourself a big star for being what you are. Write down at least 5 qualities about you. आपको अपने बारे में सोचना है और आपके अंदर की जो अच्छी खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में एटलीस्ट 5 क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है. राइट प्लूरल ऑफ दीज. सिंगुलर मीन्स एक चीज़ होती है, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. तो विंग का प्लूरल है विंग्स, ट्री का प्लूरल है ट्रीज, फिश का प्लूरल है फिशेस, बटरफ्लाई का प्लूरल है बटरफ्लाईज. गिव राइमिंग वर्ड ऑफ. आपको ट्री का राइमिंग वर्ड लिखना है. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं. तो जो नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको ढूंढ के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. ट्री का राइमिंग वर्ड आपको नीचे दिए गए हुए में से आंसर में से ढूंढना है. हॉट का हॉट की तरह दूसरा वर्ड कौन सा है वो आपको ढूंढना है. कैट की तरह राइमिंग वर्ड कौन सा है नीचे दिए गए हुए आंसर में से ढूंढना है. विंग विंग का कौन सा है वो भी आपको ढूंढ के लिखना है. राइट राइट के जैसे राइम होने वाला वर्ड कौन सा है वो आपको ढूंढ के लिखना है. जैसे ट्री का बी, हॉट पॉट, कैट रैट, विंग सिंग, राइट नाइट. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्लीज. वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट ऑल द वर्क इन योर कॉपी. आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है और वर्क आपको अपनी कॉपी में करते जाना है. बट डू डेली 1 वर्क इन योर कॉपी. डेली एक वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है
After doing daily work, you have to learn it on daily basis. It will be useful and helpful in learning. जब आप डेली का काम करते हो उसके बाद आपको उसे लर्न भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, जो आपको बहुत यूजफुल होगा पढ़ाई करने में और हेल्पफुल भी होगा. लर्न दिस पोएम विथ एक्शंस. आपको ये पोएम एक्शन के साथ लर्न करनी है. एंजॉय द वीडियो एंड द पोएम. थैंक यू. आई होप you all enjoyed the video. Thank you so much.